آج ہم ایک کہانی کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے چاندپور کی عالیہ۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ چاندپور کھیل نامی ایک گاؤں کی جدوجہد، وہاں کے ظلم اور پھر آزادی کی ایک بڑی طاقتور تصویر ہے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک بیانیہ اقتباس ہے جو ان واقعات کو بڑی تفصیل سے بیان کرتا ہے، گاؤں کے حالات، لوگوں پر کیا گزری، اور خاص طور پر ایک نوجوان عورت عالیہ کا سفر جو واقعی غیر معمولی ہے۔ آج کی گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کہانی کے اہم پہلوؤں کو سمجھیں، مثلاً کیسے خوف نے پورے گاؤں کو جکڑ رکھا تھا، پھر کیسے ایک اکیلی لڑکی کی ہمت نے تبدیلی کی، آپ کہہ لیں چنگاری روشن کی، اور آخر میں وہ آزادی ملی کیسے۔ کہانی شروع ہی ایک عجیب تضاد سے ہوتی ہے نا۔ گاؤں کے دروازے پر بورڈ لگا ہے، ہمارے خوشگوار گاؤں میں خوش آمدید، مگر یہ خوشگواری کتنی سچی ہے؟ چلیں دیکھتے ہیں اس مسکراہٹ کے پیچھے کیا چھپا ہے۔ تو چاندپور کھیل بظاہر تو ایک عام سا پرامن گاؤں لگتا ہے، آم کے باغ ہیں، کھیت ہیں، باہر سے کوئی آئے تو شاید تصویریں کھینچ کر خوش ہو جائے، لیکن اندر کا ماحول بہت گھٹن والا ہے۔ گاؤں والے ایک شخص کے زیر اثر ہیں، بلکہ یوں کہیں کہ خوف میں جی رہے ہیں۔ یہ شخص ہے راگھو سنگھ، گاؤں کا سرپنچ جی۔ اور یہ راگھو سنگھ بھی کیا کردار ہے! باہر کی دنیا کے لیے تو بڑا ترقی پسند، گاؤں کا خیر خواہ، لیکن گاؤں والوں کے لیے، ان کے لیے تو وہ قرض، کبھی نہ ختم ہونے والی محنت اور خوف کی علامت ہے۔ عالیہ اپنے باپ کو دیکھتی ہے کھیت میں ہل چلاتے ہوئے، انگلیاں سفید پڑ رہی ہیں۔ یہ صرف محنت نہیں، یہ مجبوری ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ظاہری شکل اور حقیقت کا فرق نہیں ہے، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات ہے۔ یہ ایک پورا نظام ہے جس سے طاقت کو قائم رکھا جاتا ہے۔ راگھو سنگھ باہر اپنی اچھی تصویر بناتا ہے تاکہ کوئی مداخلت نہ کرے، ٹھیک؟ جبکہ اندر وہ قرض کے ذریعے لوگوں کی زندگیوں پر مکمل کنٹرول رکھتا ہے۔ یہ اصل میں معاشی جبر ہے جو پھر نفسیاتی خوف کو جنم دیتا ہے اور اسے آپ کہہ لیں پالتا رہتا ہے۔ صحیح کہا۔ اور پھر اسی گھٹن زدہ ماحول میں مزاحمت کی ایک بہت ہلکی سی لہر اٹھتی ہے۔ عالیہ کے والد اور چند دوسرے لوگ ہمت کرتے ہیں، راگھو کے کسی حکم کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ کوئی بہت بڑی بغاوت نہیں، بس ایک چھوٹا سا انکار ہے۔ لیکن راگھو کا رد عمل وہ بے رحمانہ ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس کے آدمی حملہ کرتے ہیں، تشدد ہوتا ہے، چیخیں گونجتی ہیں اور عالیہ کے والد مارے جاتے ہیں۔ جی۔ اور سب سے زیادہ جو خوفناک بات ہے وہ یہ کہ باقی گاؤں والے وہ خوف سے جیسے پتھر ہو گئے ہوں، منہ پھیر لیتے ہیں، کوئی ایک آواز نہیں اٹھاتا۔ یہ خاموشی، یہ صرف بزدلی نہیں کہی جا سکتی، یہ شاید وہ ہے جسے نفسیات میں سیکھی ہوئی بے بسی یا لرنڈ ہیلپلیسنس کہتے ہیں۔ جب آپ مسلسل ظلم سہتے ہیں اور مزاحمت کی سزا پاتے ہیں تو لوگ آہستہ آہستہ یہ مان لیتے ہیں کہ کچھ کرنا بیکار ہے بلکہ خطرناک ہے۔ اچھا۔ راگھو کا یہ سرے عام تشدد یہ صرف ان چند لوگوں کو سزا دینا نہیں تھا، یہ باقی سب کے لیے ایک کھلا پیغام تھا کہ سر اٹھانے کی قیمت کیا ہوگی۔ اس طرح خوف جو ہے نا وہ پورے معاشرے کے نفسیات کا حصہ بن جاتا ہے۔ اسی خوفناک رات عالیہ کی ماں اسے کہتی ہے کہ بھاگ جاؤ پہاڑوں کی طرف۔ وہ بیچاری اپنا گھر، اپنی پہچان، سب کچھ پیچھے چھوڑ کر اندھیرے میں نکل پڑتی ہے۔ اور اس کا سفر کتنا مشکل رہا ہوگا؟ بہت زیادہ۔ وہ تو بالکل موت کے منہ تک پہنچ گئی تھی، پانی نہیں، کھانا نہیں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر اسے ایک دور دراز پہاڑی خانقاہ کے کچھ راہب ملتے ہیں۔ وہ اسے بچا لیتے ہیں، اس کی دیکھ بھال کرتے ہیں، لیکن ان کا ایک پکا اصول ہے، دنیا کے جھگڑوں میں نہیں پڑنا۔ وہ پناہ تو دیتے ہیں مگر اس کی لڑائی لڑنے نہیں جاتے۔ یہ بھی ایک دلچسپ نکتہ ہے۔ ایک طرف انسانی ہمدردی ہے، جان بچا رہے ہیں، دوسری طرف دنیا سے لا تعلقی کا فلسفہ۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ظلم کو دیکھتے ہوئے غیر جانبدار رہنا، کیا یہ خود ایک طرح سے ظلم کی حمایت نہیں بن جاتا؟ بالکل۔ راہب عالیہ کے جسمانی زخم تو بھر دیتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو آگ جل رہی ہے، باپ کے قتل کا بدلہ، گاؤں کی غلامی کا دکھ، اس کا علاج ان کے پاس نہیں ہے۔ ہاں، وہ زخم تو بہت گہرا تھا، اور راہب بھی شاید یہ سمجھتے تھے، تبھی انہوں نے اسے مشورہ دیا کہ جو کرنا ہے اسے خود کرنا ہوگا۔ ایک راہب نے کہا بھی، ہم تلوار نہیں اٹھائیں گے، تمہیں خود تلوار بننا ہوگا۔
ये अल्फाज, ये आलिया के लिए एक नई मंजिल, एक नया रास्ता बन गए। तलवार बनना। जी। इसके बाद कई साल वो सख्त तरीन तरबियत में गुजारती है। वो सिर्फ लड़ना नहीं सीखती, बल्कि अपने गुस्से को, अपने अज़्म को एक मौलिक हथियार में ढालना सीखती है। वो जिस्मानी तौर पर तो मजबूत होती ही है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा वो ज़हनी तौर पर एक जंगजू बन जाती है। तलवार बनना, ये इस्तिआरा बड़ा अहम है। ये सिर्फ ताकत हासिल करना नहीं है, ये अपनी पूरी ज़ात को एक मकसद के लिए वक्फ कर देने जैसा है। लेकिन इसमें खतरा भी है ना? जब आप खुद एक हथियार बन जाते हैं तो क्या आप अपनी इंसानियत का कोई हिस्सा खो देते हैं? ये एक सवाल है। क्या इंसाफ हासिल करने की कोशिश में आप खुद वैसे ही दन सकते हैं जिसके खिलाफ आप लड़ रहे हैं? आलिया का ये सफर सिर्फ ताकत का नहीं, ये उसकी अपनी शिनाख्त के बहरान का भी सफर हो सकता है। कई साल बाद आलिया वापस चांदपुर आती है। गांव ऊपर से देखने में शायद वैसा ही लगता है, वही आम के दरख्त, वही खामोशी, लेकिन अब सब कुछ अलग है, क्योंकि आलिया खुद बदल चुकी है। और इस बार वो खाली हाथ नहीं आई। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके पास अब सिर्फ जिस्मानी ताकत नहीं, उसके पास सबूत भी है। राघव के काले करतूतों का सबूत, वो कर्जों वाला लेजर, या कम से कम उसकी तस्वीर जो उसके सारे जुल्म की बुनियाद था। और फिर वो लम्हा आता है जिसका शायद वो बरसों से इंतजार कर रही थी। वो सीधी राघव के गोदाम में दाखिल होती है, जहां वो अपने खास आदमियों के साथ बैठा है, अकेली, लेकिन उसके कदमों में कोई लड़खड़ाहट नहीं। टकराव का वक्त। जी। हमला होता है, फौरन राघव के आदमी उस पर झपटते हैं, लेकिन पलक झपकते में बाजी पलट जाती है। आलिया, ओह, वो तो जैसे हवा की तरह हरकत करती है, नाकाबिले यकीन महारत से सारे हमले नाकाम बनाती है। वो सिर्फ लड़ नहीं रही, वो उनके गुरूर को खाक में मिला रही है। एक लम्हे को तो लगता है कि उसे कोई शिकस्त दे ही नहीं सकता। यहाँ ताकत का तवाजुन बदलता है, सिर्फ जिस्मानी नहीं बल्कि नफ्सियाती तौर पर भी। एक अकेली लड़की का इतने सारे तरबियत याफ्ता गुंडों पर हावी आना, ये उनके लिए शदीद जिल्लत की बात है। ये सिर्फ आलिया की ट्रेनिंग नहीं, ये उसके अंदर की वो आग है, वो अज़्म है जो उन्हें डरा रहा है। और जो गांव वाले छुपकर देख रहे हैं, उनके लिए तो ये एक नाकाबिले यकीन मंजर होगा। शायद सालों बाद उम्मीद की पहली वाज़ेह किरण। लेकिन कहानी यहाँ एक बहुत ही ड्रामाई बल्कि अलमनाक मोड़ लेती है। ऐन उस वक्त जब सबकी नजरें आलिया की जीत पर हैं, एक छुपा हुआ हमलावर वो पीछे से वार करता है। एक खंजर सीधा आलिया के पहलू में उतर जाता है। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ती है। गोदाम में और बाहर छुपे हुए गांव वालों में एकदम मौत का सा सन्नाटा छा जाता है। वो उम्मीद जो अभी जागी थी, जैसे एक लम्हे में दम तोड़ गई। ये लम्हा बहुत अहम है। ये दिखाता है कि इनफरादी बहादुरी चाहे कितनी ही गैर मामूली क्यों ना हो, उसकी भी हदें होती हैं। एक शख्स कितना ही माहिर क्यों ना हो, निजाम की चालों का, धोखे का शिकार हो सकता है। सही। ये उस ख्याल को भी चैलेंज करता है कि कोई एक मसीहा आएगा और अकेले ही सब कुछ ठीक कर देगा। शायद हकीकी तब्दीली के लिए कुछ और भी चाहिए होता है। और वही होता है। आलिया का गिरना शिकस्त नहीं बनता, वो एक चिंगारी साबित होता है। वो खौफ जो सालों से गांव वालों के दिलों में बैठा हुआ था, वो अचानक जैसे एक आतिश फिशां की तरह फट पड़ता है। बहुत हो गया, कहीं से एक आवाज गूंजती है और फिर जैसे पूरा गांव जाग उठता है। अच्छा, ये कोई मंसूबा बंद बगावत नहीं है, ये बस इज्तिमाई गुस्से का एक सैलाब है। लोग अपने घरों से निकल पड़ते हैं, हाथों में जो आता है कदालें, दरांतियां, लाठियां उठा लेते हैं। वो खेती बाड़ी के औजार अब उनके हथियार हैं और वो राघवों के आदमियों पर टूट पड़ते हैं। ये खौफ के खात्मे का ऐलान है, इज्तिमाई ताकत का पहला बेसाख्ता मुजाहिरा। ये नफ्सियाती तौर पर एक टिपिंग पॉइंट है। आलिया का गिरना, जो बज़ाहिर उसकी शिकस्त थी, वो गांव वालों के लिए आखिरी दिन का साबित हुआ। ये नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। ये दिखाता है कि इज्तिमाई अमल अक्सर किसी एक अलामती वाक़े से जन्म लेता है। और ये भी कि जब अवाम मुत्तहिद हो जाएं, तो उनकी ताकत किसी भी जाबिर कुव्वत से कहीं ज्यादा हो सकती है। चाहे उनके पास रिवायती हथियार ना भी हों, उनके वो खेती के औजार, वो उनकी रोजमर्रा की जद्दोजहद की अलामत हैं, जो अब आज़ादी की जंग का हथियार बन गए हैं। सुबह होती है तो लड़ाई खत्म हो चुकी होती है।
राघव के ज्यादातर आदमी या तो मारे जा चुके हैं या भाग गए हैं। गांव वाले जीत गए हैं मगर थके हुए हैं, जख्मी हैं। मैदान साफ होता है तो सिर्फ एक शख्स खड़ा नजर आता है, राघव सिंह, अकेला, शिकस्त खुर्दा और खौफजदा। उसके सामने कौन है? उसके सामने जख्मी आलिया है। एक हाथ में वो लेजर की तस्वीर, दूसरे में वही खंजर जिससे उसे जख्मी किया गया था, और उसके पीछे पूरा गांव जमा है। उनकी आंखों में अब खौफ नहीं, इंतकाम की आग है। मारो मारो इसे की आवाजें बुलंद हो रही हैं। ये फैसला कुन लम्हा है। इंतकाम का जज्बा बिल्कुल समझ में आता है। उन्होंने सालों जुल्म सहा है, अपने प्यारों को खोया है, लेकिन क्या इंतकाम ही इंसाफ है? क्या राघव को मार देने से वो सब ठीक हो जाएगा जो गलत हुआ? ये लम्हा सिर्फ राघव की किस्मत का नहीं, ये गांव के मुस्तकबिल की रूह का फैसला करेगा। क्या वो तशद्दुद के इसी चक्कर को जारी रखेंगे जिसका वो खुद शिकार रहे हैं? लेकिन फिर हुजूम की उन चीखती चलाती आवाजों के बीच आलिया की आवाज गूंजती है, बुलंद, साफ और पूरे इख्तियार। वो खंजर उठाए आगे बढ़ती है। एकदम खामोशी छा जाती है, सबकी सांसें जैसे रुक गई हों। राघव आंखें बंद कर लेता है, शायद मौत का इंतजार कर रहा है। और फिर? मगर आलिया उसे मारती नहीं, वो उसके करीब जाती है और एक झटके से उसके वो महंगे शानदार कपड़े फाड़ देती है। वो कपड़े जो उसकी ताकत, उसकी हैसियत की अलामत थे। वो उसे जिस्मानी तौर पर नहीं, वो उसे समाजी तौर पर बेइज्जत करती है। उसके खौफ को, उसकी शिकस्त को सबके सामने नंगा कर देती है। ये तो गैर मुतवक्का है। बहुत। फिर वो सर्द, स्पार्ट लहजे में कहती है, जाओ, भाग जाओ यहाँ से और कभी वापस मत आना। गांव वाले सकते में हैं। ये क्या हुआ? राघव, जिसे शायद यकीन नहीं आता कि वो जिंदा बच गया, लड़खड़ाता हुआ मुड़ता है और अंधेरे में गायब हो जाता है। आलिया का ये फैसला, ये वाकई गैर मामूली है। इसने इंतकाम पर रहम को नहीं चुना। शायद उसने एक बहुत मुख्तलिफ किस्म की ताकत को चुना है। राघव को मार देना आसान होता है ना? शायद हुजूम के लिए ज्यादा इत्मीनान बख्श भी होता। यकीनन। लेकिन उसे इस तरह जलील करके, उसकी ताकत की सारी अलामतें छीन कर और फिर उसे जिलावतन करके आलिया ने शायद तशद्दुद का वो चक्कर तोड़ा है। ये सिर्फ रहमदिली नहीं, ये एक बहुत गहरा सियासी बयान भी हो सकता है। उसने साबित किया कि असल ताकत जान लेने में नहीं, बल्कि जिंदगी और मौत का फैसला करने और फिर जिंदगी बख्शने में है। शायद ये ज्यादा देर पा फतह है। उसने राघव को एक जिंदा मिसाल बना दिया कि अब ताकत किसके पास है और वो ताकत कैसी है। बोर्ड अभी वही है, हमारे खुशगवार गांव में खुश आमदीद। खेत भी वैसे ही हैं, लेकिन अब जब लोग मुस्कुराते हैं तो वो मुस्कुराहट उनकी आंखों तक पहुंचती है। वो असली है। आलिया ने गांव को आजाद कराया, लेकिन कातिल बने बगैर। वो एक निजात दहिंदा बनी। तो इस सारी कहानी से, इस तफसीली जायजे से हम क्या नतीजा अख्ज़ करते हैं? बुनियादी तौर पर तो ये खौफ की जंजीरों से आज़ादी तक का सफ़र है। ये राघव सिंह के जुल्म से शुरू हुआ जी। आलिया की इनफरादी हिम्मत ने उम्मीद की शमा जलाई, गांव वालों के इज्तिमाई अमल ने इस उम्मीद को हकीकत बनाया, और आखिर में आलिया के एक हैरानकुन फैसले ने मुस्तकबिल की बुनियाद रखी। एक ऐसी बुनियाद जो शायद इंतकाम पर नहीं, किसी और चीज़ पर कायम है। बिल्कुल। और ये कहानी हमें कई अहम सवालात पर गौर करने पर मजबूर करती है। ताकत की असल नौयत क्या है? क्या ये सिर्फ जिस्मानी या माशी होती है, या उसकी नफ्सियाती और अलामती जहतें ज़्यादा अहम हैं? इनफरादी हिम्मत और इज्तिमाई अमल का आपस में क्या रिश्ता है? एक फर्द कहाँ तक जा सकता है और कब पूरे माशरे को खड़ा होना पड़ता है? और सबसे बढ़कर इंसाफ क्या है? क्या इंसाफ सिर्फ सजा का नाम है, या इसमें निजाम को बदलना और तशद्दुद के इस पुराने चक्र को तोड़ना भी शामिल है? आलिया का आखिरी फैसला हमें इंसाफ के रिवायती बदले वाले तस्वुरात से आगे सोचने की दावत देता है। और इसी सोच के साथ हम एक सवाल अपने सुनने वालों के लिए छोड़ जाते हैं। क्या हकीकी आज़ादी सिर्फ दुश्मन को, जालिम को ख़त्म कर देने से हासिल होती है, या उसके लिए अपने अंदर के इंतकाम के जज्बे पर काबू पाना और एक नया मुख्तलिफ रास्ता बनाना ज़्यादा ज़रूरी है? क्या आलिया का राघव को बख्श देना दर हकीकत उसे कत्ल करने से ज़्यादा ताकतवर इक़दाम था?